लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। এরপরে রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে তিনি মহারাজাকে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। তিনবাজার কাঁচা আনাজ ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি মদন সাউ মহাশয়কে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। তিনবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ আগরওয়ালকে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। আমরা আমাদের মাঝে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজির কাছে সাক্ষাৎ করেছে এরকম একটা ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি। উনি বেনারসে বহু সময় কাটিয়েছেন, আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। ওনার নাম রথীন চক্রবর্তী মহাশয়, ওনাকে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। রথীন চক্রবর্তী চক্রবর্তী মহাশয় দীর্ঘদিন বেনারসে কাটিয়েছেন। ওনার সাথে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আজকে আমাদের সৌভাগ্য উনি আমাদের এখানে এসছেন। छाता लेके आ गए, देख रहे हैं ना, आएगा। শ্রীরামপুর কোর্টের ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা গণেশ দাকে পেয়েছি। গণেশ দা এখানকার বিশিষ্ট নাগরিক, তাকে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। আমরা জেলা ইউথ কংগ্রেসের সভাপতি তিনি সপ্তম সিংকে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। শ্রীরামপুর মাইনরিটি সেলের সভাপতি তিনি জাভেদ আলমকে মালা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। প্রদেশ কংগ্রেসের নেত্রী তিনি পম্পা বিশ্বাসকে মালা দেওয়ার অনুরোধ জানান। কিষাণ কংগ্রেসের নেতা শ্রী চক্রবর্তী মহাশয়কে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানান। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শ্রী খোকন সরকার মহাশয়কে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানান। তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি অন্তত ভক্তি দেখার চেয়েছো। সুজিতরা আপনারা সবাই জানেন, সুজিত মুখার্জি আমাদের প্রদেশের নেতৃত্ববৃন্দ, তাকে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানান। প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্রী শম্ভুনাথ রায়কে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানান।
আতঙ্কের জন্য ভয় লাগে যারা ভয় প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্রী গৌতম দাসকে পুষ্প দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। সমাজসেবী সমাজসেবী শ্রী সুকুমার প্রসাদ মাত্রের পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানাই। অসিন্দা মাহেশ কংগ্রেসের আমাদের নেতা শ্রী অসিন্দাকে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানাই। প্রাক্তন কাউন্সিলর মিত্রানীতিকে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানাই। প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী আলোক রঞ্জন ব্যানার্জিকে মাল্যদানের জন্য অনুরোধ জানাই। সাবধান 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 রানাদাকে অনুরোধ জানাবো পুষ্পদানের জন্য। শম্ভুদা বাকি আছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে অমিতাভতাকে অনুরোধ করবো মালা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বসু কিংশুকে বলবো আছে সুব্রত সবাইকে বলছি ভাই চেক করে মালা দান প্রদানের জন্য সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। লাইটুদা আছে পরে যারা যারা বাকি আছেন দয়া করে দিয়ে দিন। এরপরে জয়েন্ট গোপাল মহাশয়কে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানাই। জয়েন্ট গোপাল আজকে আপনারা জানেন মহাত্মা গান্ধীর সাথে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন, আর শ্রীরামপুরের আইকন শঙ্করী প্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন। আজকে তিনটে মহাপুরুষের জন্মদিন, সেই জন্য আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। আপনারা সকলে বলুন लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एडवोकेट विकास सिंह के पुष्पदाনের জন্য অনুরোধ জানাই। विकास सिंह एडवोकेट বিকেদা আমি দিয়েছি সুব্রত, এই সুব্রত, এই দিদি। এই তো এখানে আমি প্রাক্তন কাউন্সিলর এমন সব ছাতা মাথায় দিয়ে আমির আনসারি আমাদের সমাজসেবী, আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির অন্যতম সদস্য, খুব অ্যাক্টিভ, তাকে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ভোলাদা কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতি, তাকে পুষ্পদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
যারা যারা যাদের নাম বলতে পারছি না ভাই সকলকে অনুরোধ একটু পুষ্পদানটা করে দেন। আরো সুশান্ত দা আমি মঙ্গলদাকে উনি পরিবারের প্রাক্তন কাউন্সিলর ছিলেন, তাকে বিচার কথা বলার জন্য প্রথমে অনুরোধ জানিয়েছি। উনি বললেন যে প্রথমে আমাদের ওই কর্মসূচিটা হোক, এই জন্য ওনাকে বিচার কথা বলার माननीय इस कार्यक्रम के संचालक अशोक गुप्ता साहेब, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मेरे तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर माल्यार्पण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम करते हैं। हमें मालूम है कि भारत के आज़ादी में जिन महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान था, उनमें शास्त्री जी भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। और आजादी के बाद जब हमारे देश में सरकार बनाई जा रही थी, उस समय हमारे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री के रूप में शास्त्री जी को जगह मिली थी और बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने ये दायित्व का निर्वाह भी किया था। वैसे शास्त्री जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा और सब वक्ता लोग हैं जो हैं वो आपके सामने करेंगे, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि ईमानदारी की मिसाल भारतीय राजनीति में 5वीं दशक में या आजादी के दिनों में, उसके बाद भी जो था, उनमें एक प्रमुख व्यक्ति शास्त्री जी थे। शास्त्री जी की माता नहीं जानती थी कि उनका बेटा रेल मंत्री है। शास्त्री जी की माता ट्रेन में चढ़कर दिल्ली के लिए आ रही थी। रास्ते में टिकट परीक्षा करने वाला जो व्यक्ति था, उनका टिकट परीक्षण किया। उन्हें ठीक से हिंदी बोलने नहीं आता, वो भोजपुरी में जो टिकट परीक्षा है उसको कहती है कि मेरा बेटा रेलवे में काम करता है, मैं दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली में उतरूंगा। टिकट परीक्षक ने पूछा था आपके बेटा का नाम क्या है? उन्होंने कहा था मेरा बेटा का नाम लाल बहादुर शास्त्री है। जब ट्रेन दिल्ली के प्लेटफार्म पर रुकी तो देखा गया कि शास्त्री जी अपने माता को रिसीव करने के लिए खड़े हैं। जब शास्त्री जी से पूछा गया कि आपने अपनी माता को कि आप रेलवे मिनिस्टर है, इसके बारे में क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माता एक सहज सरल महिला है, अगर उनको मैं बता देता कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ तो गांव के बहुत सारे लोग माता श्री के पास आते और कहते कि शास्त्री जी से बोलकर रेलवे में मुझे एक नौकरी दिला दो। और शास्त्री जी उनकी माता कहती और माता की बात को वो कभी टाल नहीं सकते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां और घटनाएं शास्त्री जी के संबंध में कहा जा सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में उस समय आजादी के बाद करीब
300 वर्षों के गुलामी के बाद हमारा देश आजाद हुआ था। देश में अनाज की कमी थी और बहुत सारी जगहों पर अनाज के लिए आंदोलन भी हो रहा था कि हमें खाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को सरकार ने उस समय ग्रहण किया था। तो शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुई थी और उस युद्ध के बाद लोगों के सामने खाने की अनाज की बहुत बड़ी कमी हो गई थी। आज से कई दिन पहले एक कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन साहब जी देहांत हो गया है, आप लोग जानते हैं। शास्त्री जी ने स्वामीनाथन साहब को बुलाया और बुलाकर बोला कि क्या किया जाए कि देश आत्मनिर्भर बने अनाज के विषय में। स्वामीनाथन साहब और कई कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया था कि सेच और सिंचाई की व्यवस्था हरित क्रांति के माध्यम से अगर किया जाए तो सरकार देश आत्मनिर्भर बन सकता है। तो 10% हमारे देश में 25 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि जमीन है, 25 लाख हेक्टेयर, उसका 10% अर्थात 2500 हेक्टेयर बीघा जमीन में हरित क्रांति हुई थी जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और 10% जमीन में कृषि वैज्ञानिकों के मदद से शास्त्री जी का जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, ये लागू किया गया हिंदुस्तान में। और 7-8 वर्षों के बाद में देखा गया कि अनाज के विषय में सरकार और हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। आज एक सवाल है हमारे देश में कि अगर 2500 बीघा जमीन में, हेक्टेयर जमीन में अगर सेच और सिंचाई की व्यवस्था करके हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो 25 लाख हेक्टेयर जमीन में अगर सेच और सिंचाई की व्यवस्था हो, अगर उसकी व्यवस्था सरकार करे तो हम लोग दुनिया को अनाज सप्लाई देने के लायक बन सकते हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है जो उस समय का सपना था आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया था, आज हमारी देश की सरकार किसानों के जमीन को कॉर्पोरेट के हाथ में देने के लिए कृषि कानून बनाती है और उसके खिलाफ में किसान रास्ते पर उतरकर 700 लोग अपने को त्याग देते हैं, उनकी प्राणों की आहुति दे देते हैं। उसके बाद जाकर कृषि बिल वापस होता है। तो उस समय और इस समय में अंतर यही है, उस समय की सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश की थी, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, इकाई और एकता के आधार पर लोगों में समन्वय स्थापित करने के लिए काम किया था। और आज की सरकार लोगों को तोड़ो और अपना गद्दी हासिल करो, इसी नीति के ऊपर आज की सरकार चल रही है। किसानों के जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में दे दो, वो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और गांव के किसान, गरीब गुरबा, खट कर खाने वाले, मेहनत कश लोग, क्योंकि हिंदुस्तान गांवों का देश है, इसलिए शास्त्री जी ने उस समय नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान हमारे देश की रक्षा करता है और किसान हमारे देश के लोगों को अनाज देता है। और यही काम ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हुई थी, जो शास्त्री जी का। और आज जो कई दिन पहले चले गए हमारे बीच से स्वामीनाथन साहब, उन्होंने ये राय भी दी थी सरकार के सामने कि किसानों के फसल का उचित मूल्य 10% आपको सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन आज भी आजादी के 77 साल 76 साल के बाद में आज भी हमारे देश के किसानों को नहीं मिली है। इसी की लड़ाई है। और इसलिए अगर हिंदुस्तान के जनता को आत्मनिर्भर बनाना है, गरीब गुरबा को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें गांधी जी और शास्त्री जी की याद जरूर करनी पड़ेगी, जिन्होंने देश के लिए, देश की एकता के लिए, इकाई के लिए, मेल बंधन के लिए, लोगों में भाईचारे के लिए काम किया है और देश को आगे बढ़ाया। इसलिए आज 2 तारीख को हम लोग शास्त्री जी के साथ साथ गांधी जी को भी हम लोग याद करेंगे। और आज कितनी जरूरत है, मुझे दुख होता है, आज सारा देश में नेशनल हॉलीडे है, लेकिन असम की एक सरकार है, आप लोग जानते हैं, कल आप लोग देखा होगा कि असम की सरकार 2 तारीख के छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। ये पहली बार आजादी के इतिहास में हुआ है कि गांधी के जन्मदिन पर जो नेशनल छुट्टी होती है
असम के मुख्यमंत्री ने नेशनल हॉलीडे को बातिल कर दिया है और सारे स्कूल कॉलेजों को खोलकर रख दिया है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, हमारे देश के राष्ट्रपिता के प्रति जो श्रद्धांजलि हमारे देश के सरकार ने दी थी उसके खिलाफ आज देश में काम हो रहा है। इसलिए हम इसका प्रतिवाद करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और गांधी जी को आज और शास्त्री जी के प्रति जो रवैया आज की सरकार की है उसकी हम घोर निंदा करते हुए आज हम गांधी जी और शास्त्री जी को पुनः एक बार याद करते हुए उनकी चलाए हुए रास्ते, जे रास्तों से लोगों को जोड़ा जा सकता था, आत्मनिर्भर किया जा सकता था, उस रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। यही बातें कहकर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। সবাই মঙ্গলদাকে ধন্যবাদ, পুরো বিস্তারিত বলে দিলেন উনি। এরপর সংক্ষেপে আমি জাভেদটাকে বলবো দু চার কথা বলার জন্য, তারপর সিডিপিটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এই বৃষ্টিতে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। আমি জাভেদ আলমকে দু চার কথা বলার জন্য বলছি। हमारे बीच आज यहाँ पे मौजूद है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संपादक आलोक रंजन बनर्जी महोदय, उपस्थित है हुगली जिला कांग्रेस कमेटी के युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्यम सिंह जी, पीछे पीछे नीचे नीचे उपस्थित है दूर श्रीरामपुर शहर कांग्रेस के ज़्यादा मुंह में सभापति पीडी मुखर्जी जी, उपस्थित है हमारे हुगली जिला के संपादक फकमदा, उपस्थित है प्रदेश कांग्रेस के मेंबर सुजीता, उपस्थित है एक्स काउंसिलर मित्तानिधि, एक्स काउंसिलर शंभुनाथ राय, एक्स काउंसिलर गौतम प्रसाद दास, एक्स काउंसिलर और यहाँ के काफी परिचित हम लोग का अशोक गुप्ता जी। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के आवाहक सुरेश अग्रवाल जी को, जिन्होंने ये श्रद्धा अनुष्ठान अनुष्ठित किया है। मैं आज के दिन एक बात बोलना चाहता हूं। इस इलाके में हमारे श्रद्धेय नेता अगर हम लोग किसी को मानते हैं तो वह है राम जी अग्रवाला जी, जिसे देखकर बहुत सारे लोग कांग्रेस किए और काफी उन्होंने अच्छे काम भी यहाँ पे किए। उनका ही देन था जो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का वेदी बनाया गया और उन्हीं का सपना था कि आने वाले दिन में यहाँ पे एक अच्छा भव्य शास्त्री जी का एक स्टैचू हो, मूर्ति हो, जहाँ पे आज का दिन हम लोग स्मरण कर सके। मैं इतने सुंदर अच्छा तरीका से ये स्मृति बनाने के लिए हमारे एक्स काउंसिलर श्री सुमंगल सिंह जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जिनकी मेहनत से, जिनके कोशिश से आज ये अच्छा जो हम लोग देख सकते हैं उनका मूर्ति वो प्रतिमा लगाया गया है। आज के दिन हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज सारे विश्व में गांधी जयंती मनाया जा रहा, साथ ही साथ भारतवर्ष में लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है आज के दिन हम श्रीरामपुर वासियों के लिए भी गर्व की बात है कि आज ही के दिन स्वाधीनता संग्रामी और हमारे नेता शंकर प्रसाद मुखर्जी की आज जन्मदिन है और उनका जयंती भी मनाया जा रहा, जिसको हम लोग श्रीरामपुर शहर कांग्रेस में मनाते हुए फिर गांधी मैदान में जाते हुए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज की परिस्थिति जैसा हो गया है, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ हमारे शंकर प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जिनके बारे में बोलने से पहले मैं एक बात बता दूं, वो जिस विचारधारा के लोग थे, इसके विचारधारा के बाद तो मुझे सुनने को मिला। आज से कुछ दिन पहले हमारे मुलाकात हुआ था हमारे एक सांसद संतोषी बाबू से, उनसे बात करते हुए मैं भी था, मेरे भाई जो IPCC मेंबर है
अभी तक उनसे भी बात हुआ। इस बात के दौरान उन्होंने बताया कि हम लोग राजनीति सीखे हैं उस टाइम के सज्जन लोगों से। बोलते हो उन लोगों ने हमारे शंकरिता के बारे में बोलना स्टार्ट किया कि एक बार कांग्रेस सरकार के विरुद्ध में सीपीएम सरकार जब आंदोलन में थे, जब छात्र समाज उन लोग आंदोलन कर रहे थे, छात्र संगठन, तब शंकरिता वहां पे गए। वहां पे जाते ही शांतो बाबू लोग सब उठ के खड़े हो गए, हाँ सर आइए बैठिए, और उनसे निवेदन किया, गुजारिश किया आपको चाय पीकर जाना होगा। शंकरी बाबू का क्या बात है, उस समय क्या भाषा था पता है आप लोगों को? वो बोले ना रे তোরা এখানে না খেয়ে অনুসরণে বসে আছি, আমি এখানে এসে চা খেয়ে যাবো, এ আমার দ্বারা হবে না। এ था शंकरी प्रसाद जी, ये था कांग्रेस का विचारधारा। और कुछ बोलने से पहले मैं बताता चलूं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी सुमंगल इससे पहले विस्तारित सब बताए हैं। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो कैबिनेट में मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे। जब एक रेल ट्रेन दुर्घटना हुआ तो उसका पूरा जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन आज के मौजूदा हालात में हम क्या देख रहे, मोदी पुल टूट जाता है लेकिन दोस्त जवाब ले जाता है वहां का कर्मियों का। आज भी रेल दुर्घटना हो जाता है भारत में, लेकिन दोस्त जवाब है तो वहां का घाट के ऊपर कोई दायित्व लेके उतना बड़ा दिला दायित्व लेने वाला कोई नहीं है। मैं बताता चलूं, उस टाइम मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की एक गिफ्ट किया हुआ जैकेट उनके पास था, जो जैकेट वो हर मौके पे पहनते थे, हर भी मौके पे पहनते थे। और उन्हीं के टाइम इतने सज्जन, इतने सही और इतने ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने एक गाड़ी खरीदा था, किस नाजने की वजह से वो गाड़ी भी बैंक ने ले गया था। ये आज के मौजूदा हालात में हम क्या देखते हैं कि हमारे कुछ अभी प्रधानमंत्री जो है सभी लोगों का पैसा है, लेकिन सूट पे सूट, सूट पे सूट, सूट पे बूट बदलते जा रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति है। आज बैंक के लोन के नाम पे हजारों करोड़ रुपया, हमारा रुपया, आपका रुपया राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसा परिस्थिति में आज देश आगे खड़ा हो गया। आज का विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा में हमें समझना पड़ेगा किस विचारधारा के साथ हमें रहना पड़ेगा। और गांधी जी के बारे में बताने से बताते क्या बताएं, बोलने से हो सकता है आज का दिन आपके रात खत्म हो जाए। वो ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने हिंदुस्तान में आते ही नील के लिए जमीन आंदोलन करते, कृषकों के साथ हुए, खिलाफत आंदोलन करते, इसी तरह छोटे छोटे आंदोलन से उन्होंने बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने जब पहले अगस्त 1920 में जब बड़ा आंदोलन की तरफ रुख करते हुए वो आंदोलन जब गए, आपका जो मूवमेंट की तरफ गए, असहयोग मूवमेंट की तरफ गए, उस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़े आंदोलन में परिवर्तित हुए। वो आंदोलन ऐसा था, इंग्रेज हिल गया था, लेकिन कुछ घटना हुआ, चौड़ी चौड़ा आंदोलन हुआ, इस सब आंदोलन ऐसा जैसा आंदोलन हुआ जिससे गांधी जी आहत हुए। और उनका दूरदर्शिता ऐसा है कि उन्होंने 4 फरवरी जब चौड़ी चौड़ा घटा, उसके एक हफ्ते के बाद 10 फरवरी को उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया। और कांग्रेस के सभापति टी मुखर्जी महाशय के একটা রেকর্ড নিয়ে নিই, ভালো করে বলবেন। বর্ষামুখর দিনে বক্তব্য দীর্ঘায়ু করে আমি তার বিরক্তি উল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু আজ যে মহান ব্যক্তির জন্মদিবস, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আজকে জন্মদিন। প্রথমে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা আয়োজন করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
উপস্থিত সকল শ্রদ্ধেয় কর্মী নেতৃবৃন্দ এলাকার অধিবাসীবৃন্দ প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। আজকে এই সভাস্থলে যারা উপস্থিত আছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তা জাভেদ আলম, তাদের নাম আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে। আমি পুনরাবৃত্তি আর করতে চাইছি না। যে কটি কথা আজকে এই পূর্ণ দিনে না বললে মনে হয় তার জন্মদিন পালন করাটা সার্থক হবে না, সেই সামান্য দু একটি কথা বলব। এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এখন ভারতবর্ষের মানুষ চলছি। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জায়গায় যে অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে, একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে তাদের সজাগ করে দেওয়া, যে ভারতবাসীকে কোনোভাবে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের কারণ নেই। এই কথা এই কারণেই বলছি, ভারতবর্ষে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আমার পূর্ববর্তী বক্তা জাভেদ আলম বলেছেন, কিন্তু তিনি শুধু স্পর্শ করে চলে গেছেন, বিস্তারিত হয়তো বলার সময় পাননি। তাই আমি তার ব্যাখ্যাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমায় মার্জনা করবেন, অল্প সময় নেব। শাস্ত্রীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তার যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি একটি গাড়ি ক্রয় করেছিলেন ব্যাংক লোনের মাধ্যমে। গাড়ির দাম ছিল 5,000 টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার জীবদ্দশায় তিনি একটি টাকাও শোধ করতে পারেননি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, বিষয়টা ভাববার আছে। আজকে যখন কোটি টাকার গাড়ি চেপে মন্ত্রী আপনারা ঘোরেন, সেই সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী একটি গাড়ি ব্যাংক লোন থেকে কিনেছিলেন এবং সেই লোন তিনি শোধ করতে পারেননি, তিনি প্রয়াত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ব্যাংক থেকে তার স্ত্রীর কাছে নোটিশ পাঠানো হয় যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীজির কাছে ব্যাংক 5,000 টাকা পাবে। তার সহধর্মীয় ছিলেন ততোধিক সৎ, তিনি তার পেনশনের টাকা থেকে ব্যাংক সুদ সহ ওই 5,000 টাকাই পরিশোধ করেছিলেন। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সততা। এর সাথে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তুলনা করবার মতো কোন নাম আমার সামনে নেই। আমি বক্তব্য আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, তার কারণে এই বর্ষায় সকলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 1965 সাল প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু, বারবার শাস্ত্রীজি যখন নেহরুজির ক্যাবিনেটের মিনিস্টার, তাকে অনুরোধ করছেন আপনি একবার কাশ্মীরে যান, শাস্ত্রীজি কিছু উত্তর দিচ্ছেন না, যেতেও চাইছেন না। নেহরুজি একটু অবাক হলেন যে আমি শাস্ত্রীজিকে কাশ্মীর যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আর তিনি রাজি হচ্ছেন না। তখন একদিন জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কাশ্মীর যেতে চাইছেন না কেন? শাস্ত্রীজি যখন অত্যন্ত লজ্জিতভাবে তাকে জানালেন যে কাশ্মীরে বড় ঠান্ডা, আমার গরম কাপড় নেই কাশ্মীরে যাওয়ার মতো। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন চোখে জল এসে গিয়েছিল সেই দিনকে। তিনি তখন তার ব্যবহৃত একটি কোট শাস্ত্রীজিকে প্রদান করেন এবং 66 সালে যখন শাস্ত্রীজি শপথ নিতে যান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, তখন সেই কোটটি পরে তিনি সংসদে গিয়েছিলেন। এটা একটি ইতিহাস, একটি কোট যে ভারতবর্ষের দুজন প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করেছিলেন। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের কংগ্রেস, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীদের আচরণ এবং জীবনধারা। লজ্জা করা উচিত আজকে যখন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে শোধ না করে সরকারি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাদের ধিক্কার জানান।
আমার বক্তব্য রাখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করলাম না, বলার অনেক কিছু আছে। শাস্ত্রীজি সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন, অনেক ঘটনা এবং সবই আবেগতাড়িত। তাই আপনাদের বলবো, আজকে এই পুণ্য দিনে শাস্ত্রীজিকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে হয়, সেটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। তার জীবনের যে সততা, যে ত্যাগ, যে অহিংসা, যে ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, তাকে স্মরণ রেখে আগামী দিনে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চলার চেষ্টা করব। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বর্তমান তার জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। এবার দু এক কথা বলার জন্য অনুরোধ করব রচিত চক্রবর্তী মহাশয়কে। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग साथी बोल रहे होंगे कि मैं बंगाली होने के बावजूद मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। इसलिए कि मैंने करीब 62-63 साल बनारस में बिताई है, तो इसलिए बंगला से ज़्यादा मुझे हिंदी में बोलने का आसान होता। काशी यानी बनारस या वाराणसी एक प्राचीन नगरी है और जिसने न केवल धर्म बल्कि भाषा, संस्कृति, संगीत, कला आदि सब में भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को उन्होंने राह दिखाई है। सौभाग्य ये है कि शास्त्री जी जिस शहर में जन्म लिए थे उस शहर में मेरा भी जन्म हुआ था। इसलिए मेरी ज्यादा आकांक्षा शास्त्री जी के इस जन्मदिन के पालन करने में ज्यादा रुचि दिखाई पड़ी। हम आयोजकों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तमाम प्राकृतिक आपदा के बावजूद उन्होंने इस तरह का शास्त्री जी का आज पुण्यतिथि, आज जन्मदिन का पालन करने का आयोजन किया है। मैं संक्षेप में बोलूँगा। मेरा व्यक्तिगत सानिध्य शास्त्री जी के साथ हुआ था। अगर कोई बनारस जाए तो शास्त्री जी का मकान गंगा के उस पार है, यानी पूरब की दिशा में। उसे कहते हैं रामनगर। छोटी सी कुटिया नहीं, छोटे से मकान, एक अल्प आय के कम आय वाले परिवार में उन्होंने जन्म लिया, पढ़ाई चालू की और पढ़ाई के लिए वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग BHU के नाम से जानते हैं, वो आते थे। नदी पार करके आते थे और लड़कों के साथ, और गेट से जो गए हैं अंदर, आर्ट्स कॉलेज कितना दूर है जरा समझ सकते हैं। लौटानी के लाइब्रेरी हो करके वो लौटते थे अपने घर। कृपया जो बनारस जाएं, कोई भी जाते ही ये लोग, वो जरूर शास्त्री जी का मकान देखें। वो एक स्मारक बनना चाहिए। ये मेरी मांग है सरकार से, स्मारक बनना चाहिए। क्यों कि ऐसे प्रधानमंत्री बिरले ही हमारे देश में मिलेंगे। ऐसा हुआ कि BHU के बनारस यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर शास्त्री जी उनके आचार्य थे, कुलपति नहीं आचार्य थे। वो आए और उसका उद्घाटन किया। उस दिन कॉन्वोकेशन भी होना था। उद्घाटन करने के बाद उनको सलामी दी गई मिलिट्री की ओर से, और फिर अपने बॉडीगार्ड लेकर के चले आए। दूसरी तरफ काफी दूर तक आम जनता खड़ी थी उनका दर्शन करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य था, मैं भी उसमें रहा और वो आए और हाथ मिलाए। ये सबसे बड़ी हमारी सौभाग्य रही है। और साथ ही साथ शास्त्री जी का विचार, नेहरू जी के निधन के पश्चात नेहरू जी ने जो आत्मनिर्भर बनने का, हिंदुस्तान का जो उन्होंने खाका बनाया था, राष्ट्र की संस्थाएं, वो उन्होंने आगे चलकर
आगे बढ़ाया। हीराकुद बांध आप लोग जानते हैं, आपका नाम सुने होंगे। हीराकुद बांध उड़ीसा में, भाखड़ा नागल तो नेहरू जी के समय में बना, हीराकुद बांध शास्त्री जी के जमाने में बना और 1965 में दुर्भाग्य से पाकिस्तान के साथ LOC को लेकर के, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने तब पूरी दुनिया 3 खेमों में बटी थी, एक अमेरिका के NATO, दूसरा सोवियत यूनियन और तीसरा हमारे तटस्थ, जिसमें मार्शल टीटो थे, उसके प्रेसिडेंट नेहरू जी भी थे और वो तटस्थता वो पालन करते थे। ऐसे में उन्होंने सोवियत यूनियन से मदद मांगी और लेफ्टिनेंट जनरल अयूब खान के साथ मिलकर बात हुई। कहाँ? ताशकंद में, जो रूस में है। ताशकंद में बात करते हुए अगले दिन शास्त्री जी के देहांत हो गया। क्या पहनते थे? मेरे जैसे कुर्ते और धोती, खद्दर और टोपी, यही शास्त्री जी का ये था। आज के प्रधानमंत्री की तरह से नहीं कि 75 लाख का शेरवानी पहन करके घुमा कर, ऐसे नहीं थे। इसीलिए आज आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे देश में हमारा संविधान तोड़ा जा रहा है, हमारा संसद को भंग किया जा रहा है, हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी ने आवाज उठाई, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन इसलिए उठाई, जवान हमारे देश की सुरक्षा प्रदान करेंगे और किसान हमारे आम जनता को वो अन्न पैदा करके खिलाएंगे। आप अगर कोई रांची गए होंगे, रांची में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने बहुत बड़े, जवाहरलाल जी ने उसकी स्थापना किया था राष्ट्रीय पर। वहाँ घुसते ही एक बिरसा मुंडा का मूर्ति दिखलाई पड़ेगा। वो बिरसा मुंडा की स्थापना शास्त्री जी ने किया था और आप लोग सुनकर के आते होंगे तो बिरसा मुंडा की जो स्टैचू बनी वो बनारस में ही बनी। वाराणसी के लिए वो बहुत ही संवेदनशील रहे हैं, ये मैंने पाया है उनको। और एक छोटी सी घटना का उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर देंगे। हरिकृष्ण शास्त्री, एक लड़का और सुनील शास्त्री, 3 उनके लड़के थे। हरिकृष्ण शास्त्री को दिल्ली में हिंदुस्तान लीवर कंपनी, उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रखा। उन्होंने अगले दिन उनके डायरेक्टर को बुलाया, मैनेजिंग डायरेक्टर को, और कहा कि क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा है इसलिए तुम उसको नौकरी में लिए हो। अगर तुम उनको नौकरी से, उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर तुम नौकरी से निकाल देते नहीं हो तो मैं तुम्हारा दिल्ली का कारखाना बंद कर दूंगा। ऐसे ईमानदार व्यक्तित्व, ऐसे सच्चरित्र, ऐसे सुयोग्य, ऐसे अटूट धैर्य कि आदमी आज मिलने मिलेंगे। आइए आज के अवसर पर हम संकल्प लें कि आज जो देश में स्थिति पैदा हो रही है उसको दूर करके हम सब शास्त्री जी के परिचिनों पर चले और जैसा वो चाहते थे संघीय व्यवस्था कायम करके हम जो है पुनः हम अपनी आज़ादी को रिस्टोर कर सकें। धन्यवाद। আপনারা সবাই এসছেন, তার জন্য আপনাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশ কীর্তি शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। धन्यवाद।